So, hello students, let's start chapter solution. So, what are the solutions? Solutions are basically mixture of solute and solvent. Solute is always present in less amount, but solvent is present in more amount. Solutions are of many types, in which when only one solute and one solvent is present in the solution, then it is called binary solution, and when more than two components are involved in the solution, then they are called trinary and quaternary, like that. So now we will come to types of the solution and the composition of the solution. So type of the solution. So on the basis of their solute and solvent, there are total 9 type of solutions are exist, in which firstly solid solution, in which solute solid होगा and solvent भी solid होगा. एग्जाम्पल एलॉय ब्रॉन्ज एंड ब्रॉन्ज होंगे. फिर सॉलिड लिक्विड का सॉल्यूशन, जिसमें हमारा सॉल्यूट सॉलिड है बट सॉल्वेंट लिक्विड है. एग्जांपल है शुगर सॉल्ट का सॉल्यूशन. थर्ड है सॉलिड गैस सॉल्यूशन, इसमें सॉल्यूट हमारा सॉलिड है बट इसमें सॉल्वेंट क्या है, गैस है, जैसे कि आयोडीन और कैम्फर आदि का सब्लिमेशन. नेक्स्ट है फिर लिक्विड सॉलिड्स, इसमें आपके जो सॉल्यूट होगा वो लिक्विड होगा, सॉल्वेंट जो होगा वो सॉलिड होगा. इसमें हाइड्रोजनेटेड साल्ट, मर्करी एंड अमलगम एक्सेट्रा. फिर लिक्विड सॉल्ट्स में सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ आर लिक्विड. एल्कोहल इन वाटर, बेंजीन इन टोलुइन. गैस इन लिक्विड में लिक्विड होगा आपका सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो इसके एग्जांपल एरोसॉल है. फिर गैस सॉलिड का हाइड्रोजन एरोसॉल, गैस लिक्विड का एग्जांपल है आपका एरिनेटेड ड्रिंक, एंड गैस इन गैस का एग्जांपल है मिक्सचर ऑफ एयर्स. तो okay, so these are the types of solid on the basis of their solute and solids. फिर liquid solutions में completely miscible means when two components mix with each other. For example, sugar and water, it is known as the completely miscible mixture. Partially mixture, when there is some amount of solute will be left in the solution, then these type of solutions are partially miscible liquids. And thirdly, immiscible liquids, those liquids which are not completely mixed in each other are called immiscible liquids. After the gas liquid solution, so the solubility of a gas in liquid depends on the several factors, like that nature of the gas, nature of the liquid, nature of temperature and pressure. These are the factors on which the liquid gas solution depends. So first, the composition of solution means concentration unit. What are the concentration unit? So firstly, what is the concentration? So if in a solution, what is the amount of solute present in the solution is known as the concentration. So there are many methods by which you can represent the concentration. So one by one we will study. Firstly, mass percent, weight by weight. Mass percent is defined as the mass of the solute in gram dissolved per 100 gram of the solution. For example, 10% urea solution means 10 gram of urea is present in 100 gram of the solution. सो टोटल उसका जो सॉल्वेंट का वेट होगा वो 90 ग्राम आ जाएगा. तो इसका जो फार्मूला है, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इक्वल्स टू मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ द सॉल्यूट प्लस मास ऑफ द सॉल्वेंट, या टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100, ये हो गया. सेकंड होता है वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ यार वेट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम. तो वॉल्यूम परसेंटेज इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन द 100 यूनिट्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द. तो इसका जो फार्मूला आ जाएगा, इन मीन्स 10% इथेनॉल सोल्यूशन इन वाटर, V by V मीन्स in 90 ml of water there is 10 ml of ethanol will be present. वॉल्यूम परसेंटेज फॉर्मूला क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100. नेक्स्ट होता है ग्राम पर लीटर. सो कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन ग्राम पर लीटर रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन. सो अमाउंट ऑफ द ग्राम प्रेजेंट इन 1 लीटर इज नोन एज द ग्राम पर लीटर. नेक्स्ट मोलरिटी. मोलरिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, बेसिकली इन लीटर. ओके, नेक्स्ट मोलरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, मोलरिटी टू एन अपॉन वी. एन इज नंबर ऑफ मोल, वी इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन द लीटर. ओके, एंड देयर आर सम अदर फॉर्मूले ऑफ मोलरिटी टू फाइंड आउट. W इक्वल टू कैपिटल M, M डैश इनटू V अपॉन, दिस इज यूज इन द टाइट्रेशन बेसिकली. ठीक है, दिस इज द some commonly used molarity terms in which M by 10. So how can they calculate? Here you can watch. Next, formality. The number of gram formula mass of an organic solute dissolved per liter of the solution at a particular temperature is called formality of the solution. Formula क्या है, number of gram formula mass of the solute upon volume of the solution in liter known as the formality mass. Formality mass को कैलकुलेट करने का वेट
कैलकुलेट करने का फार्मूला गिवन है। ओके, नेक्स्ट आता है मोलैलिटी। तो मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन डिफाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी। मोलैलिटी में वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर होता था, यहाँ पे क्या होगा, मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी होगा। इसको दूसरी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसका जो वेट निकालने का फार्मूला ये आपको गिवन है। नेक्स्ट आता है नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी क्या होता है, एक्चुअली एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इन ग्राम इक्विवेलेंस पर लीटर। ये नॉर्मेलिटी का फार्मूला है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ द सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। टर्म्स यहाँ पे डिफाइन किए गए हुए हैं। इसके दूसरे फार्मूले भी यहाँ पे गिवन है जो कि नॉर्मेलिटी को डिफाइन करते हैं। जैसे कि वहाँ पे मोलैलिटी को डिफाइन करने के कुछ टर्म्स है, यहाँ पे उसी तरीके से नॉर्मेलिटी को डिफाइन करने के कुछ टर्म्स है, उनको कैसे कैलकुलेट करेंगे उसकी वैल्यू यहाँ पे गिवन है आपको। नेक्स्ट आपका आता है मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गिवन कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। मीन्स अगर एक कोई कंपोनेंट है ए तो उसका नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो Na अपॉन Na प्लस Nb, और उसी तरीके अगर बी मोल है तो उसका Nb अपॉन Na प्लस Nb, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये कहलाता है मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने का फार्मूला। पार्ट्स पर मिलियन, इट इज़ यूजफुल टू मेजर द कंपोनेंट्स व्हेन देयर इज अ वन पार्टिकल इज प्रेजेंट इन 1 लाख या 10 लाख ऑफ द बिलियंस ऑफ द कंपाउंड। So the formula of the parts per million of the solid equal mass of the solute upon mass of the solution into 10 to the power 6 means 10 लाख solution means 10 लाख पार्टिकल्स में सॉल्यूट के एक पार्टिकल क्या हो, 10 लाख पार्टिकल ऑफ सॉल्वेंट में एक पार्टिकल किसका हो, सॉल्यूट का, तब वो कहलाता, उसको मेजर करते हैं पीपीएम में। जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस या CO का जो लेवल होता है वो पीपीएम में मेजर किया जाता है। ओके, नेक्स्ट इसमें हम आते हैं, फिर आता है कि सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड को कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए हेनरी, एक साइंटिस्ट, उन्होंने ला दिया है कि उन्होंने कहा कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली ऑफ अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ द गैस। मीन्स जो होगा सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रेशर ऑफ द गैस हो जाएगा। अगर तो हम P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X कर सकते हैं, तो अगर P प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा। उस कांस्टेंट को हम क्या बोलेंगे, KH, क्या बोलेंगे, KH। ठीक है, उस कांस्टेंट को हम बोलेंगे KH। ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज हेनरी ला कांस्टेंट, इट इज कॉल्ड एज हेनरी ला कांस्टेंट। सो ये इसका फार्मूला आ जाएगा, इस पर न्यूमेरिकल्स रहता है। फिर एप्लीकेशन ऑफ हेनरी ला, तो सिंस द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन वाटर इंक्रीज विद द प्रेशर, तो सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल्स आर सील्ड अंडर हाई प्रेशर टू एक्यूमुलेट मोर CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक, एक एप्लीकेशन। दूसरा, इन द सी डाइवर्स फॉर एयर रेस्पिरेशन दे डेवलप मेडिकल नोन एज द बेंड्स which involves the blocking of the capillary. This is because the many mixture of oxygen and nitrogen. According to the Henry's law, solubility of the gas increases with the increased pressure. तो when जब नीचे सी में जाएंगे तो प्रेशर इंक्रीज करेगा, ड्यू टू विच क्या होगा, जो हमारा ब्लड होगा, ब्लड में जो ऑक्सीजन होगी वो ज़्यादा अमाउंट में डिजॉल्व होगी। उसके बाद जब हम सी से ऊपर लेवल पे आएंगे तो क्या होगा कि जब जो डिजॉल्व गैस है वो अब बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करेगी, जिसकी वजह से हमारी वेंस में क्या कर दे देगा, वो बेंड्स क्रिएट कर देगा। तो वहाँ पे भी हेनरी का लॉ भी एप्लीकेबल होता है। इसको ये बेंड्स ना क्रिएट हो, इसके लिए जो सी डाइवर्स होते हैं अपने साथ में क्या करते हैं कि ये हीलियम और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का ये मिक्सचर ले जाते हैं इतने परसेंट का, उसमें क्या करते हैं, यूज़ करते हैं 11.7% हीलियम एंड 56.2% नाइट्रोजन, 32.1% ऑफ ऑक्सीजन। ओके, एनॉक्सिया, इसकी जस्ट अपोजिट, अगर हम अर्थ से ऊपर की तरफ जाएंगे तो प्रेशर कम होगा, फिर क्या होगा कि हमारी ऑक्सीजन ब्लड में कम घुलेगी, तो उस कंडीशन में हमको क्या होगा, एनेक्सिया फील होगा। मीन्स हमारा ब्रेन जो है प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एनॉक्सिया। तो उस कंडीशन को अवॉइड करने के लिए भी हेनरी लॉ एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट आता है फिर इसमें वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन या राउल्ट्स लॉ, इट इज इंपॉर्टेंट है। तो राउल्ट्स लॉ बेसिकली क्या कहता है, फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड, वोलेटाइल लिक्विड्स मतलब जो वेपराइज हो सके, लिक्विड फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द देयर मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो जो पार्शियल प्रेशर होता है वो उसके मोल फ्रैक्शन के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ओके, ये आ जाएगा Pi/xi। अगर हम यहाँ पे प्रोपोर्शनली रिमूव करेंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा। ओके, सो इसी तरीके से यहाँ पे Pi/P0, ये प्योर जो होगा कंपोनेंट या प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होगा, Pi जो होगा हमारा सॉल्यूशन का होगा, और Pi0 जो होगा वो प्योर उसका जो है वेपर प्रेशर होगा सॉल्वेंट का। ठीक है, तो ये हमारा एक रिलेशन बन के आएगा Pi = Pi × xi। तो अगर हम इसका डेरिवेशन देखते हैं
राउट्स लगा तो कैसे करेंगे, तो फॉर ए सोल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सोल्यूशन एट पर्टिकुलर टेम्परेचर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट इन द प्योर स्टेट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सोल्यूशन। सिंपल वही है कि पी ए इक्वल्स टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए एंड पी बी इक्वल टू पी बी नॉट इंटू एक्स बी। बेसिकली ये 2 कंपोनेंट बाइनरी सोल्यूशन के लिया गया है। टोटल प्रेशर की अगर हम बात करें तो दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, राउट्स लॉ। अब राउट्स लॉ काउंटिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए अगर हम बात करें, अभी तो वोलेटाइल के लिए था, फॉर नॉन वोलेटाइल के लिए कंडीशन चेंज हो गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। So what are the colligative properties? The properties of the solution which depends upon the number of solute particles are known as the present in the solution are known as the colligative properties. In which the first है relative lowering of vapor pressure. So relative lowering of vapor pressure क्या होता है, means अगर कोई सॉल्यूशन को आप बेसिकली हीट कर रहे हो तो एक उसमें क्या होंगे कि वेपर्स क्रिएट होंगे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो वो कहलाएगा सिंपल उसका वेपर प्रेशर। बट अगर उसमें कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देते हो तो उसका जो वेपर प्रेशर है वो क्या कर जाएगा, वो कम हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो जिस टेम्परेचर पे क्या होता था उसके वेपर्स बनते थे उससे क्या करेगा, ज़्यादा टेम्परेचर उसको देना पड़ेगा और नंबर ऑफ वेपर्स क्या करेंगे, कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि क्या होगा कि अगर एक कंटेनर में अगर ये लिक्विड फिल है और इसमें क्या होगा, अगर हम नॉन वोलेटाइल सॉलिड को डाल दोगे तो यहाँ पे इसके सरफेस पे इकट्ठा हो जाएंगे, तो जो वेपर्स बन के इसमें से निकल के जा रहे थे उनका निकलना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मीन्स रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। जो रिलेटिव लेवलिंग ऑफ वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट करते हैं पी नॉट माइनस पी अपन पी नॉट। पी नॉट प्योर का है सॉल्वेंट का और पी सॉल्यूशन का है अपन। ठीक है, इसी तरीके से अगर इसको राउट के लॉ के साथ में अगर कोरिलेट करेंगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा पी नॉट माइनस पी अपन पी नॉट इक्वल्स टू एक्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें, अब उसको मेजर करने के लिए अलग कंडीशन है। अब डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सो ये अकॉर्डिंग टू द जो होगा आपका वेपर प्रेशर ये आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या आ जाएगा आपका, अगर मोल फ्रैक्शन यहाँ पे लगाते हैं तो एक्स सॉल्यूट इक्वल्स टू एन ए अपॉन एन ए कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन। हेंस इक्वेशन अगर इसको दोनों को इक्वलाइज करते हैं देन क्या हो, सपोज W इक्वल टू मास ऑफ द सॉल्यूट एंड W इक्वल्स टू मास ऑफ द सॉल्वेंट। So capital M molecular mass of the solute and M dash is the molecular mass of solute. So the what is the formula basically will come out. So N equal to this and capital N is equal to this, putting the value and find out the molecular formula of this. Okay. For very dilute solution के लिए जो molecular formula आ जाएगा वो आएगा आपका ये, यहाँ पे क्या हो जाएगा जो n है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, और ज़्यादा कम हो जाएगी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मीन्स जो टेम्परेचर पे वेपर्स क्रिएट होते थे उससे ज़्यादा टेम्परेचर पे हमारा क्या हो जाएगा, वेपर्स क्रिएट होंगे ड्यू टू एडिशन ऑफ द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन। So due to which the temperature will increase, this condition is known as the elevation in boiling point। ठीक है, तो इसमें एक ग्राफ ये दिया हुआ है, इसमें आप इसको देखकर समझ सकते हो कि ये सोल्यूशन 1 है, ये सोल्यूशन 2 है, ये प्योर सॉल्वेंट है। तो प्योर सॉल्वेंट का ये कंडीशन यहाँ पे आ रही थी, लगभग मान लो यहाँ इस टेम्परेचर पे आ रहा था, लेकिन जब उसमें सोल्यूशन 1 एक लिया तो उसका टेम्परेचर बढ़ गया, मान लो ये यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे देखो TB T1 T2, तो ये प्योर का था, T1 पहले वाले का था दूसरे, तो टेम्परेचर क्या हुआ, इंक्रीज होगा। मतलब जितने पे वेपर्स बन रहे थे उससे ज़्यादा टेम्परेचर पे वेपर्स बनेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया है जिसकी वजह से वेपर्स को वो निकलने से रोकेगा। दैट इज कॉल्ड द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और एक्सप्रेसिंग एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट्स को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, तो इसको हम अगर इस फॉर्म में लिखेंगे तो ये कंडीशन आएगी और फाइनली जो हमारा निकल के आएगा जो फार्मूला वो TB डेल्टा TB इक्वल्स टू डेल्टा P। ठीक है, मीन्स जो चेंज इन टेम्परेचर एलिवेशन टेम्परेचर वो इक्वल्स टू किसके होगा, जो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के। ठीक है, सो फाइनली डेल्टा TB इक्वल टू प्रोपोर्शनल हटाएंगे, KB आ जाएगा इंटू MK और डेल्टा F जो होगा KF इंटू FK, वो बॉइलिंग होगा, ये फ्रीजिंग होगा। इनको कोरिलेट करेंगे एक साथ में तो हमारा एक फार्मूला बन करके आएगा। ठीक है, वो डेल्टा TB का वो ही आएगा इतने टेम्परेचर पे। ठीक है, इसकी बेसिस पे न्यूमेरिकल है, उसको देख लिए। फिर आता है ऑस्मोटिक प्रेशर। सबसे फर्स्टली व्हाट इज़ द ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस क्या होता है कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से व्हेन
सॉल्यूट मूव करेगा किधर की तरफ, जो जो आपका होगा प्योर सॉल्वेंट जो होगा सॉल्यूशन की तरफ मूव करेगा, तो उसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक है, और रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होगी, इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, जब हायर मतलब जो है सॉल्यूशन में जब हायर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन की तरफ कोई सॉल्यूशन मूव करता है, तो उस सॉल्यूशन के मूवमेंट को जो प्रेशर मतलब जो है प्रिवेंट करे, दैट इज कॉल्ड द ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, थैंक यू।